students, welcome to the last video of the chapter that is polymers. ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स का ये हमारा लास्ट वीडियो है, लास्ट लेक्चर है, that is about polymers, and this topic is in the RBSc syllabus, not in the CBSE. So the RBSc student should be more careful about the topic because one question is asking from this topic, it is 200% ट्रू. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आरबीएससी स्टूडेंट्स मस्ट बी केयरफुल. द टॉपिक इज पॉलीमर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमर? पॉलीमर मीन्स द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर यूनिट्स. क्लियर? सो दीज पॉलीमर्स आर obtained by the combination of smaller units, and these smaller units are called as monomers. It means many of the monomers combine together to form a single unit that is called as a long chain compound, that is called as polymer, and the process of formation of polymers is called as polymerization. So here the monomers are there, many of the monomers, the process is polymerization, and the product formed which is polymer. These polymers are basically divided into two categories. The first one is natural polymer. Okay, the first type is natural polymer, and the second one is synthetic or artificial polymer. As the name indicates, that natural polymers are obtained from the natural things, for example from plants and animals. So here some examples of natural polymer are, that is natural rubber which is obtained from the rubber plant, cellulose is there, starch is there, resins are there. So these are the some important type of natural polymers. In these natural polymers we will discuss about only one, that is natural rubber. So here the first natural polymer, that is natural rubber. This natural rubber is obtained from the rubber plant and basically from the latex of rubber plant. Latex of rubber plant. What is the meaning of latex? Latex is the white colored milkish substance. That's why the name is given to the latex, है ना. मिल्क जैसा व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, तो उसे हम लेटेक्स कहते हैं, और इस लेटेक्स को हम रबर प्लांट से ऑब्टेन करते हैं और फिर इस लेटेक्स से हम नेचुरल रबर बनाते हैं. ठीक है. सो व्हेन दिस लेटेक्स इज गोइंग टू रिएक्ट विद एसिटिक एसिड, देन इट गेट्स सॉलिडिफाइड. तो हमने जो नेचुरल प्लांट से, रबर प्लांट से हमने जो लेटेक्स ऑब्टेन किया है, firstly this latex is treated with acetic acid. This latex is treated with acetic acid and this will get solidified. It means the solid latex is going to obtained. The rubber which is obtained by this method is not pure. So to pure it and to increase its elasticity and tensile strength, this rubber is going to treated with sulfur. ठीक है. इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम इस रबर को सल्फर के साथ ट्रीट करते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वल्केनाइजेशन एंड द रबर इज कॉल्ड एज वल्केनाइज्ड रबर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, दैट इज व्हाट इज वल्केनाइजेशन? When the natural rubber is treated with sulfur, clear? This solidified rubber, when it is treated with sulfur, why it is treated with sulfur? It is treated with sulfur to increase
the tensile strength and elasticity of the rubber. We know that rubber is very much elastic. So to increase the elasticity, it is treated with sulfur. That process is called as vulcanization, and the rubber which is obtained by the process of vulcanization is called as vulcanized rubber. Now, what is the monomer unit of rubber and how it gets polymerized, and what is the polymer of the rubber, the structural formula of that rubber. Basically, the monomer unit of rubber is isoprene. Clear? So isoprene is the monomer unit of rubber. So here the isoprene, this is CH2 double bond CH, single bond C, double bond CH2. Here is again CH2. N number of isoprene. This is isoprene. N नंबर मीन्स कितने भी नंबर इसके हमारे पास हो सकते हैं. तो इसके बहुत सारे, क्योंकि मोनोमर यूनिट्स जब बहुत सारी आपस में जुड़ती हैं तभी हमारे पास पॉलीमर यूनिट बनती है. सो दिस इज आइसोप्रीन. N number of isoprene gets connected with each other or combined with each other by the process of polymerization. The process which is going to take place, that is polymerization. Because we know that the carbon compounds are having a very good capability of polymerization. So here the polymerization is going to take place, and the polymer which is formed from this isoprene is called as polyisoprene. That is the natural rubber. Now what is the formula of the polyisoprene? This is CH2 single bond CH double bond C single bond CH2, and here is the CH2. Now this N is going to written here and this is the bond. ठीक है, ये बॉन्डिंग हमें यहाँ पे लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम पॉलीमर की बात करते हैं तो पॉलीमर का मतलब क्या है, N नंबर ऑफ मोनोमर्स आर गोइंग टू बी जॉइंड. तो यहाँ पर और दूसरे हमारे पास आइसोप्रीन के जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे अटैच है, तो हमें यहाँ पे ये बॉन्डिंग शो करना बहुत जरूरी है. तो आप इस बॉन्डिंग को शो करेंगे. दिस डबल बॉन्ड और दिस डबल बॉन्ड इज गोइंग टू शिफ्टेड हियर. ठीक है, तो डबल बॉन्ड जो हमारे पास था, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया है और एक डबल बॉन्ड जो था वो यहाँ पे हमारे पास आ गया है. ठीक है, तो इस तरीके से जो N नंबर ऑफ आइसोप्रीन थे, इन्होंने हमारे पास क्या बनाया, दिस इज द polyisoprene. Now the N is written here. ठीक है, अब आपने N को कहा लिखा है, यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है N number of monomers are going to attach with each other and forms a polyisoprene. This is the natural rubber. Clear? Some of the other examples of natural fiber, that is cellulose, starch and resins are also there, but we will discuss about only the natural rubber. Next one is the synthetic fibers. Synthetic fibers or the synthetic polymers. Synthetic polymers means the polymers which are going to obtain by chemicals, and these are made by human beings. That's why they are called as synthetic or artificial polymers. Okay, these are categorized into two categories, that is synthetic fibers and plastic. So first of all, we have to study about the synthetic fibers. First one is synthetic fibers. Many of the synthetic fibers are there. We will discuss the preparatory methods or the monomer and polymers of some synthetic fibers. The first one is nylon 66. The first one is nylon 66. है ना, नायलॉन का नेम आप लोगों ने सुना होगा. नायलॉन जो है ये बेसिकली क्लोथ्स बनाने के लिए और रोप्स और मैट्स बनाने के लिए हम इसका नायलॉन का यूज करते हैं. तो यहाँ पर जो नायलॉन 66 है, हाउ द नायलॉन 66 इज ऑब्टेन्ड. दिस नायलॉन 66 इज ऑब्टेन्ड by the condensation of adipic acid and hexamethyldiamine. Clear? So you have to learn the formula of adipic acid and hexamethyldiamine. So here the formula is, firstly the adipic acid, this is adipic acid,
n number of adipic acid are there. So this is adipic acid. ठीक है, फॉर्मूला लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने CH2 के 4 मॉलिक्यूल सेंटर में लिए और दोनों साइड आपने क्या लगा दिया, COOH ग्रुप. दिस इज द COOH ग्रुप, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. दिस इज अगेन, here is the C. This is again COOH group. This is adipic acid. Now the hexamethyldiamine. So here n number of hexamethyldiamine. This is H, NH, CH2 6 times, NH2. This is hexamethyldiamine. क्लियर? तो ये हमारे पास क्या था, ये NH2 ही है. दिस इज NH2. हम इसको NH2 लिख सकते हैं, बट यहां से हमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, इसलिए हमने इसको लिखा है, H को अलग सेपरेट करके लिखा है. ठीक है, आप इसको यहाँ पे NH2 भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां से हमें एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा है. ठीक है, अब यहां से क्या होगा, यहां से हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल, दिस वाटर मॉलिक्यूल ना, N is the number of hexamethyldiamine. So this is hexamethyldiamine. क्लियर? यहां से हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा. वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल के पूरे कंपाउंड को हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है. ठीक है, तो मैं इसे यहां लिख रही हूं, आई एम राइटिंग इट अबाउ. आपको यहां पे एरो बना के उसको नीचे लेकर जाना है. ठीक है, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है तो मैं इस एरो से इसको ऊपर लेके जा रही हूं. तो अब हमारे पास यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया. नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड हियर, दिस इज जो कंपाउंड हमारे पास बना है, हम उसके बारे में लिखेंगे. यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया है. दिस इज गोइंग टू अटैच विद NH, CH2. Here the NH. Again one hydrogen is removed from here, क्योंकि यहां से ये एक और दूसरे हेक्सामेथाइलडाइमिन के साथ जुड़ा हुआ है. इट मीन्स हेक्सामेथाइलडाइमिन के साथ जुड़ा है, तो वहां से फिर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा. तो उस वाटर मॉलिक्यूल को निकालने के लिए हमने H को क्या कर दिया, सेपरेट. और यहाँ पे क्या बना दिया हमने, बॉन्ड. सेम यहाँ पर, यहां से फिर से ये किसी दूसरे हेक्सामेथाइलडाइमिन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहां से भी इसे क्या चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा यहां से भी, तो इसीलिए हमने यहां से OH निकाल दिया. क्योंकि यहां से कैसे जुड़ा होगा, ये यहाँ का OH, सपोज दिस इज OH, यहां से ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, दूसरे हेक्सामेथाइलडाइमिन के साथ. ठीक है, तो यहां से फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा. सेम प्रोसेस यहां भी होगी, क्योंकि काफी सारे मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सिर्फ बॉन्डिंग दिखाकर हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि बॉन्डिंग का मतलब क्या है, बॉन्डिंग मीन्स है हमारे पास यहां से ये दोनों साइड कहीं से जुड़े हुए हैं. ठीक है, यहां पर आ जाएगा N, कितने नंबर जुड़े हुए हैं, N नंबर, कितना भी हो सकता है, और साथ में N नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. दिस इज द N नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है यहां से बाहर निकल जाएंगे. क्लियर? सो दिस इज द process of formation of nylon 6,6 by the condensation of adipic acid and hexamethyldiamine. Clear? This nylon 6,6 is used in making gears, in making clothes, in making ropes, and in making fibers also. Clear? The one important polymer that is nylon 6,6. आपसे एग्जाम में इसके मोनोमर्स का फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, मोनोमर का नेम पूछ सकते हैं, प्रोसेस पूछ सकते हैं पूरी, तो आप इसको बहुत अच्छे से लर्न करेंगे. द फॉर्मूला सिंपल वे मैंने आपको बता दिया लर्न करने का. नाउ द नेक्स्ट वन इज द टेरिलीन. ठीक है, नेक्स्ट जो फाइबर है आपके पास, दैट इज टेरिलीन. सो हियर इज द टेरिलीन. Second one is terylene. This terylene is obtained by the condensation of, this is obtained by the condensation of terephthalic acid, and ethylene glycol. क्लियर? तो फिर से हमें क्या करवाना है, एक कंडेंसेशन प्रोसेस करवानी है.
टेरिलीन जो है इसका यूज भी हम बेसिकली क्लोथ्स बनाने में करते हैं, लेकिन जो बोट्स होती हैं ना, जो सेलिंग बोट्स होती है, उनके जो क्लोथ्स उस पे लगे हुए रहते हैं, उन क्लोथ्स को बनाने के लिए बेसिकली टेरिलीन का यूज करते हैं। बैग्स बनाने के लिए, बेल्ट्स बनाने के लिए हम टेरिलीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर टेरिलीन जो है ये टेरेफ्थलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकॉल के कंडेंसेशन से बनेगा। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेरेफ्थलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकॉल? सो हियर इज द फॉर्मूला। ठीक है, फिर से आप ध्यान देंगे, बीच में आपको एक हेक्सागोनल रिंग बनानी है। दिस इज द हेक्सागोनल रिंग and both of the side of hexagonal ring is occupied by the carboxylic acid group. So this is the carboxylic acid group 1, and here is also one carboxylic acid group. So this is terephthalic acid, n number of terephthalic acid are there. This is terephthalic acid. Now the ethylene glycol. So here n number of ethylene glycol. This is CH2OH. This is the ethylene glycol. Clear? So this one is ethylene glycol. Now again a water molecule is going to remove from here. So from here n number of water molecules are going to removed. और बाकी सबको फिर से आपको, जैसे हमने नायलॉन 6 के केस में सबको ऐड किया था, एग्जैक्टली वैसे ही हम इसको ऐड कर देंगे और हमारे पास पॉलीमर बन जाएगा। कैसे? यहां से OH रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये भी किसी के साथ इधर जुड़ा हुआ है। बॉन्ड इज देयर, दिस इज C डबल बॉन्ड O, वन हेक्सागोनल रिंग इज देयर, दिस इज हेक्सागोनल रिंग, हियर द अगेन C डबल बॉन्ड O, OH यहां से निकल गया है वाटर बनाने के लिए, यहां पे ये O, देन अगेन दिस इज CH2 and O, because this not yes, O is there because this is going to attach with the another one of the molecule. Clear? This is the teriline molecule, n number, and n number of water molecules are going to removed here. So this complete is the structure of teriline, or it is the formula of teriline. Clear? तो हमारे पास 2 important type के polymers हो चुके हैं, fibers, that is called as fibers. They are nylon 66 and teriline. The third important fiber is rayon fiber. ठीक है, rayon भी हमारे पास एक fiber है, and this rayon is obtained from cellulose. ठीक है, सेल्यूलोज जो एक प्लांट फाइबर है, ठीक है, द प्लांट फाइबर सेल्यूलोज से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। व्हेन द सेल्यूलोज इज डिसॉल्व्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड। क्लियर? हियर आई एम राइटिंग द प्रोसेस, केमिकल इक्वेशन इज नॉट देयर, ओनली द प्रोसेस इज गिवन, दैट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर इज rayon and it is obtained from cellulose. ठीक है, तो सेल्यूलोज से हम इसे ऑब्टेन करेंगे। when the cellulose is treated with sodium hydroxide means NaOH and carbon disulfide means CS2. This is carbon disulfide. When this is treated with both of these things, then the substance or the solution which is obtained is going to react with sulfuric acid. ना this solution, इसको रिएक्ट करने के बाद जो सोल्यूशन हमारे पास ऑब्टेन होता है, that solution should be passed from the small pores. ना छोटे पोर्स में से हम उसको पास करवाते हैं और H2SO4 के साथ हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं, and that is mixed with, it is this solution is passed, I am writing here, passed from minute pores, and after that is going to react with dilute H2SO4, and the substance which is obtained is called as rayon. ठीक है, तो rayon हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन होगा। This rayon is basically used in making
clothes, in making threads, and in making mattresses. So these are the three important synthetic fibers, that is nylon 66, terylene and rayon. The second one is plastic. Plastic is also synthetic polymer, and different type of plastic is used in daily life, है ना. हमें पता है plastic is non biodegradable substance, but still we are using, because without plastic we cannot survive. आप देखते हो आजकल हर एक चीज प्लास्टिक की बनी हुई है, तो हम किस किस चीज का यूज करना बंद कर सकते हैं. तो हर चीज प्लास्टिक की बनी हुई है. डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक इज देयर. सो फर्स्ट वन इज द पॉलीथीन. ठीक है, फर्स्ट प्लास्टिक कौन है हमारे पास? पॉलीथीन. ना पॉलीथीन बैग्स हम काफी सारे थिंग्स को कैरी करने के लिए यूज करते हैं. सो दिस पॉलीथीन इज ऑब्टेन्ड by the polymerization of, it is the polymer of ethene. We all know about ethene. What is ethene? Ethene is the first member of alkene series. I think it is CH2 double bond CH2. This is the ethene. Clear? So it is ethene. How many numbers? N numbers of ethene are going to be polymerized. So here the process of polymerization is going to take place, and what is formed? The product formed is polythene, that is CH2 single bond CH2. जो यहाँ का डबल बॉन्ड है, this bond gets break and यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बॉन्ड. ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये फिर से किसके साथ जुड़ा हुआ है? इथीन के मॉलिक्यूल्स के साथ. So here the N, and this is polythene. Clear? And this polythene is basically used in making polythene bags, and this is also molded to form pipes and tubes. ठीक है, तो काफी सारी चीजें हमें पॉलीथीन की बनी हुई मिलती है. The monomer unit of the polythene is ethene. Next one is PVC. ना बहुत इंपॉर्टेंट, हम PVC पाइप्स यूज करते हैं ना. आप लोगों को पता है PVC पाइप्स हम वाटर फिटिंग के लिए जो अपने घरों में पाइप्स यूज करते हैं, दे आर द पीवीसी पाइप्स. पीवीसी मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड. द सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिक इज पीवीसी. इट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड. इट मीन्स इट्स मोनोमर यूनिट इज विनाइल क्लोराइड. So vinyl chloride is the monomer unit of PVC. So we have to know about the formula of vinyl chloride. कुछ नहीं करना है, हमने जो इथीन देखा था CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास इथीन था, तो यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और जो एक H हमने रिप्लेस किया है उस H की जगह पे आपने लगा दिया क्लोरो ग्रुप. दिस इज कॉल्ड एज विनाइल क्लोराइड. सो n number of vinyl chloride are there. Double bond is there. ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था हमारे पास, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, तो डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा. तो दिस इज द विनाइल क्लोराइड. दिस इज विनाइल क्लोराइड. आफ्टर पॉलीमराइजेशन वी ऑब्टेन PVC. क्या करना है हमें? सिंपल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना है. क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है, और जो ब्रोकन बॉन्ड है वो कहाँ चला जाएगा? साइड में, और यहाँ क्या आ जाएगा? n नंबर ऑफ दिस. क्लियर? तो दिस इज सिंपल, एंड दिस PVC इज यूज्ड इन मेकिंग वाटर फिटिंग पाइप्स, क्लोथ्स, रेनकोट्स. क्लियर? रेनकोट्स बनाने के लिए हम PVC का यूज करते हैं. वाटर फिटिंग पाइप्स जो है, इन सबको बनाने के लिए हम PVC का यूज बेसिकली करते हैं. नेक्स्ट वन इज polyacrylonitrile, that is PAN. PAN is polyacrylonitrile. It is also called as Orlon. PAN. This is polyacrylonitrile. It is also called as Orlon. ठीक है, कुछ नहीं करना हमें.
विनाइल क्लोराइड से हमारे पास बना था पीवीसी, और PaN बनता है विनाइल साइनाइड से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, विनाइल साइनाइड। तो जहां पे हमने क्लोरो ग्रुप लगाया था वहां पे हम साइनाइड ग्रुप लगा देंगे, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH। इथीन में से आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और क्या लगा दिया वहां पे, साइनाइड ग्रुप। सो N नंबर ऑफ दिस ना, दिस इज एक्राइलो विनाइल साइनाइड और एक्राइलोनाइट्राइल। Here this is called as विनाइल साइनाइड। यहाँ पे क्लोरो ग्रुप था तो विनाइल क्लोराइड, और साइनाइड ग्रुप है तो विनाइल साइनाइड। इसे हम एक्राइलोनाइट्राइल भी कह सकते हैं। पॉलीमराइजेशन होगा हमारे पास इसका, और क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, here the CN is and the bond is gone there. Very much simple process. Clear? So this is the PaN polyacrylonitrile or Orlon. It is used to prepare wool fibers. ठीक है, जो हमारे पास सिंथेटिक वूलन्स आते हैं तो उसके जो फाइबर्स बनते हैं उन फाइबर्स को बनाने के लिए हम ऑरलॉन का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्लास्टिक है कौन सा, पॉलीस्टाइरीन। सो फोर्थ वन इज polystyrene. This is formed by the polymerization of styrene molecules. Polymerization of styrene. ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा स्टाइरीन का, that is CH2 single bond CH, here C6H5 is added. N number of this is styrene. Clear? स्टाइरीन का पॉलीमराइजेशन होगा, इसका हमारे पास हुआ पॉलीमराइजेशन, और क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, C6H5 and its N number are going to form polystyrene. This is a styrene and bond is there. This is polystyrene. So these are the important synthetic fibers. This polystyrene is used in making packing materials and wall tiles. So many uses are there. So this is all about the synthetic fibers. One more synthetic polymer is there ना, नेचुरल रबर हमारे पास था और एक हमारे पास सिंथेटिक रबर भी होता है। तो सिंथेटिक रबर इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज ब्यूना S एंड ब्यूना N. ब्यूना S is obtained from Buna S is obtained by butadiene, and this is obtained by butadiene and styrene, and Buna N is obtained from butadiene and acrylonitrile. So here काफी लंबा लेक्चर हो गया आज का, but this is the last lecture, so no problem is there. सिंथेटिक रबर, नेचुरल रबर तो आइसोप्रीन से ऑब्टेन होता है हमारे पास। दिस इज सिंथेटिक रबर, और सिंथेटिक रबर है बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज ब्यूना S एंड ब्यूना N. दिस ब्यूना S is obtained from butadiene and styrene, and this Buna N is obtained from butadiene and acrylonitrile. Clear? So this is all about the synthetic fibers. यहाँ पे हमारा पॉलीमर का टॉपिक और साथ में ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको चैप्टर काफी अच्छे से समझ में आया होगा। सीबीएसई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे एक और टॉपिक हमारे पास है, दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, और आरबीएसई में ये टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में। सो सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वहां पे उसे एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे से। तो जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं वो प्लेलिस्ट में जाके एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर सर्च करेंगे और उसमें आपको लास्ट वीडियो मिल जाएगा, दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स।
ठीक है। तो सीबीएसई स्टूडेंट्स जो भी है, स्पेशली फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट्स, द सोप्स एंड डिटर्जेंट टॉपिक इज देयर, क्योंकि उनके सिलेबस में सोप्स एंड डिटर्जेंट को कार्बन कंपाउंड चैप्टर में दिया हुआ है और आरबीएसई में दिया हुआ है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में। तो वहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में एसिड बेस चैप्टर सर्च करेंगे और वहां पर आपको इजीली सोप एंड डिटर्जेंट वाला टॉपिक मिल जाएगा। सो सीबीएसई स्टूडेंट्स, डोंट वरी अबाउट दैट, you have to search the soap and detergent topic in the acid base and salt chapter. क्लियर? होपफुली आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज अपने कमेंट्स भेजते रहिए, लाइक्स, शेयर्स, जितना हो सकता है आप चैनल को स्प्रेड करने की कोशिश करिए। यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसे शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। एंड इफ you want to give any suggestion, then you can also write in the comment box. Thank you very much.